Great. Thank you so much, guys, for the entire for the energy. Very good. Let's quickly start with leukocytes. Leukocytes are another word for WBCs or white blood cells. The meaning of the word leuco in leukocytes is white. Okay. Wherever you come across the word leuco, it means leukocyte. Yeah. Earlier, I gave you an example. In fact, I had asked you a question. What is leukoderma? Leuco means white, just correlating the word. Leuco means white, derma means skin. So leucoderma was, yes, white patch on the skin. Yeah. So wherever you come across the word leuco, it means white. Okay. So leukocytes are WBCs. Yes. Now these WBCs, what do we already know about these WBCs? Yeah. Where are they formed? Come on, in the chat box, those who know, in the chat box will write where are WBCs found or formed rather. Formation of WBCs is called leukopoiesis. Poiesis means process of formation of blood cells. Process of formation of RBC is called erythropoiesis. Process of formation of platelets is called thrombopoiesis. Process of formation of WBCs is called leukopoiesis. Very good. It is formed, most of you all have given it correct. The correct answer, it is formed in the red bone marrow. So WBCs are formed in the red bone marrow. The process of formation of WBCs is called leukopoiesis. Now, details of leukopoiesis we don't have in the syllabus. We just know that uh, they are cells of the red bone marrow. They undergo changes and they form WBCs. Yes. Then what else do we know? They have a lifespan. Now the lifespan is variable. Some of the WBCs may live for about few days. Some may even live for about few years or few months. Okay, so basically WBCs are our army. There are warriors, है ना? तो अभी वॉरियर का लाइफ स्पैन कैसे होगा? अगर कोई वॉरियर कोई लड़ाई में वॉर में जाएगा तो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिनों में ही मर जाए और अगर वॉर नहीं हो रहा है ज्यादा तो फ्यू मंथ्स टू फ्यू इयर्स भी वो जिंदा रह सकता है. ओके, सो दैट इज व्हाई इट हैज अ वेरिएबल लाइफ स्पैन. After its lifespan is over, WBCs are destroyed by which organ? If you know the organs, type it in the chat box. If you know with the organs, type it in the chat box. Okay. So WBCs are destroyed by spleen, and the other organ which it destroys is the liver. Spleen is an organ which is present in the abdominal cavity just below the diaphragm. Okay, so liver and spleen are organs present just below the diaphragm. Yeah, spleen is present on the left side, liver is present on the right side. So almost at the same plane, liver right side पे होता है, spleen left side में होता है. ठीक है? So all our blood cells, RBC, WBC, platelets, once their activity is over, they are all destroyed by spleen, and and finally whatever products, harmful substances will come out, they will be detoxified by the liver. Then, in terms of its size, what do we know? WBCs have a variable size. In fact, the size of WBCs can range anywhere from 8 to 14 micrometers. The size of RBCs was around 7.2 micrometers. The thrombocytes were anywhere between 2 to 4 micrometers, and WBCs are 8 to 14 micrometers. So that means, what do we know about WBCs? WBCs in terms of size are the largest blood cells. Very, very important. In terms of size, WBCs are the largest blood cells. Okay? Then we also studied about its quantity. Now, how do we study quantity of any cell? We study quantity of any cell in a unit called
millimeter cube of blood. What does millimeter cube of blood mean? Suppose if I take a box, okay, and the size of the box is 1 millimeter in length, 1 millimeter in breadth, and 1 millimeter in thickness. उतने छोटे बॉक्स में जितना भी ब्लड आएगा तो उसको बोलेंगे 1 millimeter cube of blood. So I can say it is around 1 drop of blood. Okay, WBCs can range anywhere from 50,000 to 5,000 to about 10,000 cells. So WBCs are anywhere from 5,000 to 10,000 WBCs per millimeter cube of blood. Erythrocytes or RBCs are around 5 million per millimeter cube of blood. Thrombocytes are around 2.5 lakhs per millimeter cube of blood. 5 million का मतलब होता है 50 lakhs. So erythrocytes are 5 million or 50 lakhs. Thrombocytes are 2.5 lakhs, and WBCs or leukocytes are 5,000 to 10,000 cells per millimeter cube of blood. So what do we know about the quantity of WBCs? Yes, the quantity of WBCs is, it is the least abundant blood cell. Yes, so very, very important. The the largest blood cell is WBC, and least abundant blood cell is also WBC. Yeah. So this is just a quick recap of WBCs. WBCs or leukocytes are white blood cells. They are formed in the red bone marrow by the process called leukopoiesis. Poiesis means formation of blood cells here. The lifespan can range from a few days to a few months, or maybe sometimes years as well. They are destroyed by spleen and liver after their function is over. They have a size ranging from 8 to 14 micrometers. Hence, they form the largest blood cells in terms of size. In terms of quantity, they are 5,000 to 10,000 cells only, 10,000 cells per millimeter cube of blood only. Hence, they are the least amount of blood cells. Okay. All right. Now let's go to the structure of leukocytes properly. Now, most of the leukocytes don't have a definite shape. Okay, so they don't have a definite shape. Yeah. Can you tell me the name of a unicellular organism जो आपने पढ़ा है जिसका definite shape नहीं होता है और सबका आंसर एक ही आएगा? Right, सबने सेम लिखा है. Good. Good. Very good. So an irregular or no definite shape wala microorganism is, okay. Kids, just want to tell you for people those who are new, जो भी आप comments लिखोगे, type करोगे chat box में, yes, chat box दिखने के लिए Alt और H साथ में दबाओगे, Alt आपका Alt और H, तो आपको chat box खुल जाएगा. Chat box में whatever you're going to write, nobody else can read it, only I can read it. Okay, so please don't worry कि लोग मेरे मतलब क्या सोचेंगे, क्या देखेंगे, कोई कुछ सोच नहीं रहा है, ठीक है. So please participate everyone, है ना. लिखिए जो आपको ध्यान में आता है आप लिखिए. That's the only way by which we can participate, we can bring everything together. ठीक है. So it does not have a definite shape. Because it does not have a definite shape, we can say it looks like an amoeba. So that is why we say that they are amoeboid in shape. Amoeboid का मतलब OID, words ending with OID का मतलब होता है like, उसके जैसा, है ना. For example, एक word है cuboid. Cuboid का मतलब क्या होगा? Suppose a cell is cuboid in shape. Cuboid का मतलब क्या होगा? Very good, Aditya Vedika, Saloni, Devangi, very good. Aditi, like a cube, very good. Cuboid समझ गया सबको. चलो ovoid, ovoid, अगर ये word ovoid रहेगा तो ovoid का मतलब क्या होगा?
शाबाश. Now majority of y'all except for Aditi, बाकी सब ने ये लिखा है. Ovoid का मतलब होता है oval like, है ना, और oval का मतलब होता है egg like. तो आपको क्या लगता है ओवॉइड का मतलब होता है एग लाइक लाइक? ना, ओवॉइड का मतलब होता है एग लाइक, ओवल लाइक नहीं. ओवॉइड का मतलब होता है एग लाइक. अगर ये सुन के लगा अरे सर हमने वही लिखना चाहते थे, तो यू नो व्हाट टू टाइप. टाइप सर गलती से मिस्टेक हो गया, जीएसएम. टाइप जीएसएम व्हिच मींस गलती से मिस्टेक. कम ऑन टाइप, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू ऑल realize your mistake. Yeah, yes Aditi, ये you are the only person who got it right. ovoid का मतलब होता है egg like, है ना. अच्छा, rhomboid का क्या मतलब होगा? rhomboid, rhomboid का क्या मतलब होगा? वेरी गुड. rhomboid का मतलब होगा rhombus like. Everybody understood the meaning of the suffix oid, right? So WBCs don't have a regular shape. They are amoeboid, mostly like an amoeba. Okay, they have irregular margins. Yeah, they don't have a regular margin. Now some of the uh, WBCs do one important thing. Okay, you have to remember this rule first, and the rule is that the blood cells never come out of blood vessels. ओके मतलब आरबीसी हमेशा ब्लड वेसल्स में रहेगा. प्लेटलेट्स अगर ब्लड वेसल रप्चर होगा तो आ सकता है, बट अगर रप्चर नहीं है तो कोई भी ब्लड सेल ब्लड वेसल के बाहर नहीं आ सकता है. ठीक है, गुड खुशी. तो ब्लड सेल्स नेवर कम आउट ऑफ ब्लड वेसल्स. ये रूल समझ लो. वो छोटे से छोटा ब्लड वेसल जो होता है कैपिलरी, उसमें रहेंगे और आर्टरी वेन सब में घूमते रहेंगे, पर वो बाहर नहीं निकलेंगे. ओके, मैं ब्लड सेल्स का बात कर रहा हूँ, बाकी ब्लड सेल्स. ओके, नाउ व्हेन there are some, so now let's understand something. So there is, say, a blood vessel. Okay, uh, so this is the smallest blood vessel. The smallest blood vessel is called the capillary. Okay, I'm drawing holes in this because capillaries has small holes in it. Yeah, artery veins, they don't have small pores. Capillaries have small pores in them, है ना. अब ये कैपिलरी है और इस कैपिलरी के अंदर अपना ब्लड फ्लो हो रहा है ना, बट वो पोर्स इतने छोटे हैं कि उससे कोई ब्लड सेल्स बाहर नहीं निकल सकता. ब्लड सेल नहीं निकलेगा, ना आरबीसी, ना डब्ल्यूबीसी, ना प्लेटलेट. ना एवरी टाइम वी नो दैट एवरी टाइम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ब्लड में घुसेगा इसकी गारंटी नहीं है. करेक्ट, कभी स्किन में भी आ सकता है, मसल में भी आ सकता है ना. तो सपोज आई हैव अ deadly microorganism like this. Okay, so this is my microorganism, and this microorganism is somewhere outside the blood vessel, say मसल में है या स्किन में. अब इसको मारने के लिए WBCs को जाना पड़ेगा, इसको खाने के लिए WBCs को जाना पड़ेगा. So some WBCs, okay, what will happen is some WBCs are allowed to come out of the capillaries. Okay, not all of them. Some WBCs are allowed to come out of capillaries. तो ये कैसे आएंगे पता है? क्योंकि ये अमीबा जैसे हैं, वो क्या करेंगे, वो एक साइटोप्लाज्म का एक्सटेंशन ऐसा बाहर निकालेंगे. समझा? जैसे अमीबा स्यूडोपोडिया निकालता है, वैसा वो स्यूडोपोडिया निकालेंगे. ओके, सो जस्ट टू एनलार्ज दिस इमेज, सपोज दिस इज इनसाइड ऑफ द कैपिलरी, है ना. तो क्या होगा, ये सपोज WBC है, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा निकालेगा. ठीक है, थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, धीरे धीरे करके ये साइड छोटा होते जाएगा, ये साइड छोटा होते जाएगा और ये साइड इधर से बड़ा होते जाएगा. समझा? एंड फाइनली क्या होगा, पूरा का पूरा ब्लड WBC बाहर निकल गया होगा. ओके,
समझा? तो पहले ऐसा गया, फिर ये ऐसा हुआ, एंड फाइनली ये यहाँ पे आ गया. यस. Now, not all WBCs, not all RBCs, not all platelets. Some WBCs are allowed to do this. Okay. Now, this process, yeah, the process by which some WBCs come out of the blood vessel. The process by which some WBCs come out of the blood vessel is called diapedesis. Now, I have taught this to you, the decoding earlier also. Yes, Aditya, yes, Vedika, you're correct. Now, words ending with cis, okay, suffix cis, generally means a process. So, words ending with cis generally means a process. What is the meaning of the word pedo? Na? Pedi. चलो पेडी से निकलने, बताओ आंसर क्या होगा? पेडी. वेरी गुड पाकी, वेरी गुड किरण. पेडी का मतलब क्या होगा? ना, चलो पेडी से सिमिलर वर्ड, निरंजन ने एक पेडी से वर्ड दिया था, पेडेस्ट्रियन. पेडेस्ट्रियन वर्ड दिया था. ओके. एक और वर्ड आता है पेडल. एक पेडल आता है. वेरी गुड शमिका, वेरी गुड वेदिका. अभी भी बाकी लोगों को नहीं समझा है. हाँ किरण, सेंटीपीड भी आता है. सेंटीपीड, मिलीपीड. अच्छा, शायद गर्ल्स को भी मालूम हो. आज तो बॉयज, आजकल शायद बॉयज को भी मालूम होगा. जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं तो ब्यूटी पार्लर में एक प्रोसेस होता है कॉल्ड पेडिक्योर. सबने सुना है? तो पेडिक्योर में क्या होता है? पेडिक्योर में कौन से बॉडी? हाँ, अदिति को अभी समझा. रगम, सुरम्या, करेक्ट. सारी लड़कियों ने आंसर देना. समृद्धि, खुशी, सब ने आंसर देना शुरू कर दिया अभी. यस. पेडी का मतलब होता है फुट. ठीक है, पैर है ना. फुट इज सिंगुलर एंड फीट इज प्लूरल. या एक फुट, मल्टीपल फीट. तो मेरे पास 2 फीट है ना. तो सेंटीपीड, पता है सेंटीपीड को क्यों सेंटीपीड बोलते हैं? चलिए, पीड का तो मतलब फुट हो गया. सेंटी क्यों बोलते हैं? सेंटी, बताओ. सेंटी का मतलब क्या होता है? सेंट, परसेंट. पाखी का परगम करेक्ट. अदिति, नो. वरुण, वेदिका करेक्ट. खुशी करेक्ट. सेंटी, जय, वेरी गुड. सेंटी का मतलब होता है 100, है ना. परसेंट, पर 100, है ना. 100. यस किरण. सो सेंटीपीड का मतलब है 100 फीट वाला. 100 फुट है उसको, ऐसा लगता है कि उसको भगवान ने 100 फुट दिया है. तो ऐसे ही एक इंसेक्ट होता है जिसको हम लोग मिलीपीड भी बोलते हैं. मिलीपीड, उसका मतलब है मिलियंस ऑफ फुट. ठीक है. तो एनीवेज, कमिंग टू द प्रोसेस ऑफ diapedesis. So diapedesis is a process by which WBC forms feet. That is why foot like process ना, इसको pseudopodia बोलेंगे. So what is the meaning of the word or prefix dia? Yes Deep, humans are bipedal. दो legs होते हैं. You're right. चलो, डाया का मतलब क्या होगा? ना, डाया का मतलब 2 नहीं है. डाया मतलब, डाई मतलब 2 होता है. DI मतलब 2 है. ये है डाया. क्या क्या वर्ड शुरू होते हैं डाया से? डायामीटर,
तो अगर आप लिखते हो डायामीटर मतलब 2 मीटर, 2 मीटर नहीं होता है वो। डायाफ्रम, डायाफ्रम का मतलब क्या होता है? 2 फ्रम नहीं। डायामीटर, डायाफ्रम, डायाग्राम, डायबिटीज, वेरी गुड, डायगोनल, डायग्नोसिस, ये सब मेरे को मालूम है। अमन, मेरे डायलिसिस वर्ड मत बताओ। डाया का मतलब क्या होता है? Sneha, there would be some problem with your internet connection. Just log out and log in. You're not able to watch the screen. So, yeah. Okay. So, dia का मतलब होता है across. It means to pass across. Okay. So, here diameter का मतलब होता है length across the body. Length across the circle. Meter का मतलब होता है length. From, diaphragm का मतलब होता है membrane across the body. डायग्राम, ग्राम का मतलब होता है टू ड्रॉ और टू क्रिएट. सो टू ड्रॉ और क्रिएट अक्रॉस द पेज इज डायग्राम. Okay, diabetes is a condition which is affecting the entire body, across the body, throughout the body. So dia का मतलब होता है across. अगर इतने साल तक ये वर्ड्स आप यूज कर रहे थे और आज तक डाया का मतलब नहीं मालूम था और आज पता चला है, तो आपके दिमाग में एक बत्ती जली होगी. यू नो व्हाट टू राइट. आहा. आहा. राइट. सो डाया का मतलब होता है अक्रॉस. अक्रॉस. या आई एम जस्ट रिपीटिंग इट फॉर सम पीपल हु हैड लॉस्ट कनेक्शन इन बिटवीन. डाया का मतलब होता है अक्रॉस. इट मींस अक्रॉस द बॉडी. लेंथ अक्रॉस द सर्कल इज कॉल्ड diameter. मेम्ब्रेन अक्रॉस द बॉडी इज कॉल्ड diaphragm, diagram, diabetes. ठीक है. So diapedesis का मतलब है the process by which WBCs come across the capillaries forming a foot-like procedure. That is why the word is diapedesis, coming across by forming a foot-like procedure. तो मैंने बाकी बच्चों को भी ये बोला था कि अगर आप इतने सालों तक ये वर्ड डायामीटर, डायाफ्रम ये सब यूज कर रहे थे और डाया का मीटिंग आपको आज समझ में आया है, तो ये आपके लिए एक लाइट बल्ब मोमेंट है. whenever we have a light bulb moment, लोग comments में लिखते हैं aha, AHA, aha. So if this is a light bulb moment for you, you can write aha. Yes, Samriddhi. Yeah, Ananya, great. Chaliye. So let's move ahead with our discussion. So WBCs don't have a definite shape. They are like an amoeba, amoeboid in shape. Normally, blood cells will not come out of blood vessels, but yes, Niranjan, I can read everybody's chat. But the problem, Niranjan, is that I cannot announce it that I can read. So there is a reading here. I can read everybody's chat. Don't worry. Yeah. Chalo. So the process by which WBCs come out of blood vessels is called diapedesis. The process by which WBCs come out of blood vessels, specifically capillaries. They cannot come out of arteries, they cannot come out of veins because they don't have pores in it. So the process by which WBCs come out of blood vessel, which blood vessel? Capillaries, is called diapedesis. Yes. Chalo. Now, WBCs are nucleated. What is the meaning of the word nucleated? They will have a well-defined nucleus. They have a well-defined nucleus. Yeah. Now, this is unique because other blood cells, what are the other blood cells? RBCs and platelets, erythrocytes and thrombocytes, they don't have a nucleus. So this is very, very important that in humans or in mammals, the only nucleated blood cells, the only nucleated blood cells are WBCs. सब important
बार बार लिखता हूँ because MCQ में पूछते हैं. So WBC is the largest blood cell, WBC is the least abundant blood cell, and WBCs have a nucleus. They are the only blood cells in our body with a nucleus. So we say that they are the only nucleated blood cells. Now, what is the color of WBCs, children? What is the color of WBCs? Come on, in the chat box, type. What is the color of WBCs? Great. So, color of WBCs is that they are colorless. Okay. Color of WBCs is that they are colorless. Saloni, I think, has given the correct answer first. Then Aditi. Yeah. Now, what's the difference between white? So tell me, is it colorless like water or is it colorless like milk? Is it colorless like water or is it colorless like milk? Okay. Now people still have a problem here. How do you see color? Okay. So suppose I have an object here and say this object is green in color. Yes. So what is going to happen here is that light, which has all 7 colors, it will fall here. Yeah. All 7 colors will be absorbed by this object and only green will be reflected back. This green, when it is reflected back in our eye, we see this as green color. So anything which is green in color absorbs all the colors of light and only reflects green back. So whatever color of objects you see, we are actually seeing the reflected light. Okay. Now, in science, black and white are not colors. Now, why black and white are not colors? In fact, they are conditions. When light falls on an object and this object absorbs everything and it does not reflect anything back, it will be black in color. But black in color हम English में बोलते हैं, science में it will appear black. Actually, we don't see that only. So black absorbs all the light, does not reflect anything back. तो एक्चुअली जब हम ब्लैक देख रहे हैं, मुझे वहां पे एक्चुअली कुछ दिख नहीं रहा है. My eyes are not seeing anything. That is why it is appearing black. है ना? कुछ लोग लिख रहे हैं black color. As I was telling you, black is not color. How do I explain? Okay, let's look at this. Equation 1. Blind people, yeah, see black. Correct? According to you, black is a color. So if black is a color, then blind people see color, which is not possible. So in darkness, you see black. You go blind, you see black. If light is not able to reach your eyes, it is black. And white is opposite. When light falls on an object and the entire light is reflected back, it does not absorb anything. If there is no absorption, then it will be white. So anything which is white in color is called colorless in science, because it simply means not of any particular color. Nothing is reflected back. Okay, nothing is reflected back. Did we understand this? So it is white like milk. It is not white like water. Now water में क्या होता है? Light passes through and through water. So water is transparent.
water is transparent, water is not white. water will take any color which is, मतलब वो बीकर के पीछे जो भी, ठीक है, जो भी कलर होगा वाटर का वो कलर दिखेगा. अब सुबह अगर ब्लू स्काई होता है तो द पॉन्ड विल अपीयर ब्लू इन कलर. अगर डीप पॉन्ड के एकदम नीचे के हिस्से पे बहुत सारे ग्रीन कलर के स्पाइरोगेरा या एल्गे ग्रो हो जाते हैं तो वाटर अपीयर्स ग्रीन इन कलर. अगर ऊपर क्लीन वाटर है, कोई एल्गे नहीं है और स्काई ब्लू है तो वाटर अपीयर्स ब्लू इन कलर. और रात को वाटर अपीयर्स ब्लैक इन कलर. ओके, बिकॉज इट इज ट्रांसपेरेंट. Now, why is white not considered a color? Because white is combination of 7 colors. Okay, so when I say colorless, it means no particular color, all colors. Right, Varun? I hope you got this answer. No? So this is all about colorless. ये सब mostly आपको आगे जाके भी लाइट के प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे तो बताया जाएगा. बट केमिस्ट्री वगैरह में भी जब भी एक व्हाइट कलर का कोई पाउडर आएगा तो उसमें लिखा जाएगा इट इज अ कलरलेस पाउडर. कलरलेस पाउडर का मतलब होता है व्हाइट लाइक मिल्क. मिल्क कैसा व्हाइट लाइक मिल्क का मतलब मिल्क कैसा व्हाइट दिखता है वैसा होगा. इट इज व्हाइट इन कलर. ओके, सो WBCs आर कलरलेस. दैट्स द फर्स्ट पॉइंट. ठीक है ना. सेकेंड पॉइंट, these WBCs cannot be seen by the naked eye, so I need to see them under a microscope. है ना. Now I will take these WBCs on a slide, है ना, and I will observe them under the microscope. Now what will be the shape of the cells that I will see under the microscope? Let me see if you can recollect. मैंने WBCs को, understand my question clearly, okay, मैंने WBC को एक स्लाइड पे रखा. उस स्लाइड पे मैंने कवर स्लिप चढ़ाया. कवर स्लिप चढ़ा के मैंने माइक्रोस्कोप एडजस्ट किया. अभी क्लियरली मुझे माइक्रोस्कोप में दिख रहा है. अब मुझे ये बताइए कि WBCs का शेप कैसे दिखाई देगा. WBCs का शेप कैसे दिखाई देगा? How will the WBC seem to you? How can you see the shape? Great, Sanket, Adiba, Vedika, good, Paki. Now, whatever your answer, बहुत सारे लोग टाइप कर रहे हैं. आप जो भी लिख रहे हो लिखना बंद कर दो, बिकॉज आप सबके आंसर गलत है. बिकॉज आपको कुछ दिखेगा ही नहीं. आपको कुछ भी नहीं दिखेगा. ओके, व्हाट डज दैट मीन? ठीक है, फिर से ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला था एंड नाउ कोरिलेट. अगर मैंने एक स्लाइड के ऊपर WBCs लिए, ठीक है, कवर स्लिप डाला, माइक्रोस्कोप एडजस्ट किया. अब उस माइक्रोस्कोप के थ्रू मुझे WBC कैसे दिखेंगे, क्या शेप के दिखेंगे? तो सबसे पहले तो मुझे WBC दिखेंगे ही नहीं. पता है क्यों नहीं दिखेंगे? क्योंकि जो माइक्रोस्कोप में मैं लाइट, सबने स्कूल में माइक्रोस्कोप यूज किया है, करेक्ट? तो माइक्रोस्कोप में हम नॉर्मल या नेचुरल लाइट यूज करते हैं, है ना. माइक्रोस्कोप जो यूज करते हो आप, जो आपके स्कूल में ऐसे वाला माइक्रोस्कोप था, करेक्ट? यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक मिरर होता था जिससे आप लाइट एडजस्ट करते थे, है ना. नाउ द मिरर वाज रिफ्लेक्टिंग लाइट. सो व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट? व्हाइट. अब व्हाइट लाइट में आप व्हाइट सेल्स दिख रहे हो. ठीक है, व्हाइट लाइट में आप व्हाइट सेल्स देख रहे हो. अगर व्हाइट लाइट में आप व्हाइट सेल्स देख रहे हो तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे दिखेगा. तो अब मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं. ओके, सबको दिखा डॉटेड लाइन स्क्वायर का? सबको स्क्वायर का डॉटेड लाइन दिखा? अब ये व्हाइट में है और डॉटेड मैंने चालू रखा है, इसके लिए दिख रहा है. ओके,
ये हो गया व्हाइट स्क्वायर इन व्हाइट बैकग्राउंड. तो white thing in white light will not appear at all. It will be invisible. अगर आपको ये सुन के झटका लगा है तो you know what to write. जो फैक्ट शॉकिंग और झटका देते हैं उसके लिए हम लिखते हैं 440 440 का वोल्ट. तो लिखिए, अगर आपको झटका लगा, अमन को 440 के साथ साथ लाइट बल्ब भी जली. वेरी गुड. अमन हैज रिटन 440. आहा, great. So I make you write this 440 AHA for a reason, so that these points remain there in your mind for a long time. यार सर ने तभी ये बोला था, ठीक है? So this is very very important, that those cells which have any kind of colorless appearance, उनको हम नॉर्मल माइक्रोस्कोप में आसानी से नहीं देख सकते. बाय द वे, अगर सपोज मैंने लीफ डाला होता तो मुझे माइक्रोस्कोप में वो ग्रीन कलर के सेल्स दिखते, या इस ब्लड में मुझे आरबीसी दिखेगा. क्यों मुझे आरबीसी दिखेगा? बिकॉज आरबीसी रेड कलर का होता है, बट डब्ल्यूबीसी नहीं दिखेगा. और जब मुझे चीजें नहीं दिखती हैं, then I am going to use something known as stains, yeah, also called dyes. So stains और dyes का एक फंडा ये होता है कि the stains or dyes basically are colored compounds, and those colored compounds will go and bind to some part of the cell. Okay, so normally stains are either acidic in nature or stains are basic in nature. Okay, so basically क्या होता है, एसिडिक स्टेन जाएगा, अब सेल के जो बेसिक हिस्से होंगे उस पे चिपक जाएगा, बिकॉज बेसिक थिंग्स विल अट्रैक्ट एसिडिक स्टेन. और बेसिक स्टेन है वो सेल के एसिडिक एरिया पे चला जाएगा. समझा? Now normally acidic stains, now people started using different colors for stains. So it was an unwritten rule which was created कि जितना भी अगर आप एसिडिक स्टेन्स बनाओगे तो उसमें जो आप कलर डालोगे वो रेड या फैमिली ऑफ रेड का होना चाहिए. रेड, ऑरेंज, डार्क रेड, ब्राउन, मजेंटा, है ना, मरून, ये सब रेड की फैमिली के. एंड अगर आप ब्लू कलर यूज करते हो तो लाइट ब्लू, बेबी ब्लू, नेवी ब्लू. ओके, ये सब आप बेसिक स्टेन के लिए यूज करोगे. सो जब आप बेसिक स्टेन्स यूज करते हो तो उसमें आप ब्लू या फैमिली ऑफ ब्लू डालते हो. वायलेट इज द ब्लू फैमिली, है ना. और जब आप एसिडिक स्टेन्स बनाते हो तो उसमें आप कौन से कलर डालते हो? रेड कलर डालते हो. सबको समझा? सो सपोज मैंने एक स्टेन बनाया, है ना. सो आई क्रिएटेड अ स्टेन, ठीक है. Now this is an acidic stain which will go and bind to some basic part of the cell. अब मुझे इसमें कलर डालना है तो I am going to use red color. So my stain becomes red in color now. तो अब जिधर जिधर ये stain जाएगा उधर उधर red color जाएगा. And then when I observe it under the microscope, wherever the stain has gone, it will appear red in color. ठीक बात? सबको समझ में आई ये? Now let's try to figure this out. Okay, ये क्वेश्चन मैंने अपने फर्स्ट लेक्चर में पूछा था, तो लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि कैसे चीजें होंगी, राइट. सो सपोज आई एम लुकिंग एट एनी सेल, डब्ल्यूबीसी नहीं, कोई भी सेल. ओके, उसका न्यूक्लियस है ना. अब इस न्यूक्लियस पे मैंने एक एसिडिक स्टेन भी डाला, उस पे मैंने बेसिक स्टेन भी डाला, ठीक है. और दोनों में से कोई एक ही चीज वो एक्सेप्ट कर रहा है ना, वो न्यूक्लियस. अब अगर मैंने इसको इस पे डाला, माइक्रोस्कोप में डाला, ऑफ कोर्स डोंट गो बाय द कलर, मतलब ये ब्लैक कलर समझ लो. ब्लैक कलर मतलब मैंने ऐसे कलर रैंडमली ब्लू चूज किया था, ऐसा नहीं कि ब्लू. और सपोज एक सेल है, उसका न्यूक्लियस है. आपको मुझे बताना है कि न्यूक्लियस में जब मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा
तो मुझे रेड कलर दिखाई देगा या ब्लू कलर दिखाई देगा? कम ऑन, कमेंट बॉक्स में लिखिए स्पेसिफिकली जो बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं अटेंड किया। वेरी गुड वरुण, वेरी गुड पाखी। थिंक अबाउट दिस। तो अभी हाफ हाफ आ रहा है, कुछ लोग रेड लिख रहे हैं, कुछ लोग ब्लू लिख रहे हैं। ओके, आंसर रेड या ब्लू में से एक ही है। ओके, चलो मेरे को एक बात बताओ, न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा जो चीज होती है वो अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट? न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल होता है, करेक्ट? वो जेनेटिक मटेरियल क्या है? व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल व्हिच इज प्रेजेंट इन आवर न्यूक्लियस? करेक्ट निरंजन, अदिति, वेदिका, संकेत, Varun, yeah. So many people are writing chromosomes. Chromosomes are made up of what? What are chromosomes made up of? They are made up of DNA. स्कूल में आपने पढ़ा है डीएनए आरएनए, है ना? चलो डीएनए का फुल फॉर्म बताना तो जरा फटाफट लिखो तो डीएनए का फुल फॉर्म। वेदिका, वरुण, आदित्य जी, अदिति, कौन? डीएनए का फुल फॉर्म लिखिए सब लोग। वेरी गुड परगम, वेरी गुड किरण, देवांगी, वरुण, निरंजन। So it is D stands for deoxyribo, N stands for nucleic, A stands for acid, deoxyribonucleic acid या DNA, ठीक है? उसका लास्ट वर्ड क्या है? डीएनए का लास्ट वर्ड क्या है? सब लिखिए, सब लोग लिखो, लास्ट वर्ड क्या है? सो इसका मतलब न्यूक्लियस क्या हुआ? न्यूक्लियस क्या हुआ? एसिडिक। अगर न्यूक्लियस एसिडिक हुआ तो इट विल अट्रैक्ट बेसिक स्टेन। तो अगर न्यूक्लियस बेसिक अट्रैक्ट करेगा तो न्यूक्लियस विल अपीयर व्हाट? ब्लू इन कलर। समझा? ऑफ कोर्स बहुत सारे जगहों पे है ना, कुछ बेसिक स्टेन्स में ब्लू कलर भी होता है, ठीक है? लाइक स्पेसिफिकली क्रोमोसोम्स को स्टेन करने के लिए रेड कलर के भी स्टेन्स होते हैं, बट ये मेरा एग्जांपल है। नॉर्मली एसिड स्टेन्स आर रेड इन कलर, बेसिक स्टेन्स आर ब्लू इन कलर। सबको अभी समझा स्टेन का फंडा? अच्छा, लेट्स फिगर इट आउट इन द अदर वे कि चलो अगर यहाँ पे कुछ सेल ऑर्गेनल्स है, सबको मालूम है सेल ऑर्गेनल कॉल्ड राइबोसोम। चलो अगर यही सेम एग्जांपल है तो राइबोसोम कौन से कलर का दिखेगा मुझे? राइबोसोम कौन से कलर का दिखेगा? वेरी गुड किरण, आदित्य थिंक अगेन, खुशी गुड, सलोनी गुड, वरुण थिंक अगेन, वेदिका थिंक अगेन। राइबोसोम में जो वर्ड राइबो है वो कहां से आता है? वेरी गुड किरण, निरंजन, वरुण, आदित्य, आप लोगों ने जो आंसर लिखा था, वेदिका, है ना? जरा ये सवाल का जवाब दीजिए, राइबोसोम में राइबो कहां से आता है? राइबो का मतलब होता है राइबोज न्यूक्लिक एसिड। सो राइबोसोम इज मेड अप ऑफ, मेनली मेड अप ऑफ आरएनए। समझा? सो आरएनए इज आल्सो एसिडिक, and because RNA is acidic, ribosomes will also take up a blue color. So सेल में जो भी एसिडिक होगा वो बेसिक स्टेन एक्सेप्ट करेगा
और जो भी बेसिक होगा वो एसिडिक स्टेन एक्सेप्ट करेगा। समझा सबको? चलो, if that is understood, then let's move ahead with the next part. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं पता है, मैं है ना WBCs को स्टेन करता हूं. So how do I create, how do I observe them under the microscope? Now obviously blood में आप WBC, RBC, प्लेटलेट्स ये को इसको सेपरेट तो नहीं कर सकते, है ना? इसको क्यों आप सेपरेट नहीं कर सकते हो? एक ही ड्रॉप ऑफ ब्लड है, उसमें थोड़ी आप सेपरेट करके फिर माइक्रोस्कोप में देखोगे. सो दिस इज व्हाट वी डू. ओके, व्हाट वी डू इज वी टेक अ स्लाइड, ओके, और उसमें एक एंड पे एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लेते हैं. तो पेशेंट को प्रिक करके एक एंड में एक ड्रॉप ऑफ ब्लड ले लिया. ओके, सपोज ये है ड्रॉप ऑफ ब्लड, है ना? अब क्या करते हैं, एक कवर स्लिप से ये ड्रॉप ऑफ ब्लड को इसके ऊपर स्प्रेड कर देते हैं, है ना? तो ये जो ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो ऐसा कुछ स्प्रेड हो जाएगा. नाउ बेसिकली, yes Kiran, your answer is correct. What you have asked is correct. Yeah, obviously the अच्छा एक और चीज समझ लो कि एक स्टेन है ना, अगर एक सेल के लिए काम करता है तो शायद दूसरे सेल के लिए काम ना करे. Okay, because it has to be very specific in terms of attraction. So that is why there are hundreds of stains available. है ना? Anyways, so हम लोग क्या करते हैं, ये जो एक ड्रॉप ऑफ ब्लड है वो इतने बड़े एरिया में स्प्रेड कर दिया, उसका पोछा लगा दिया. ठीक है? सो क्योंकि उसका पोछा लगा दिया, दिस इज कॉल्ड स्मीयर. ठीक है, इसको बोलते हैं ब्लड स्मीयर. ठीक है, सो वी टुक वन ड्रॉप ऑफ ब्लड ऑन अ स्लाइड एंड आई स्मीयर्ड इट, स्प्रेड इट ऑन द I smeared it or spread it on the slide. Now when I smeared and spread it on the slide, now the एक drop of blood पूरे slide में available है. अब मैं उसको माइक्रोस्कोप पे डालने से पहले this is what I do. Okay, I first add acidic stain. Okay, the acidic stain that is used is called eosin. What is the name of the acidic stain? Eosin. It is red in color. तो ब्लड सेल्स को स्टेन करने के लिए जो एसिडिक स्टेन मैं डालता हूं उसको बोलते हैं eosin. ठीक है? Now I will keep the acidic stain for some time so that जिसको भी, जो पार्ट को भी ये स्टेन लेना है वो ले लेगा. एंड आफ्टर सम टाइम जो भी एक्स्ट्रा एसिडिक स्टेन रहेगा उसको मैं स्लाइड को टर्न कर दूंगा. तो जैसे उल्टा करूंगा तो एक्स्ट्रा जितना भी एसिडिक स्टेन है वो सब बाहर निकल जाएगा. समझा? देन विद लिटिल वाटर आई विल वॉश इट. वॉश इट मतलब एसिडिक स्टेन डाइल्यूट हो जाएगा, उसको वॉश करके निकाल दो. देन ऑन द सेम ये आई एम ऑल्सो गोइंग टू एड बेसिक स्टेन. ओके, द बेसिक स्टेन दैट वी यूज फॉर स्टेनिंग ब्लड सेल्स इज कॉल्ड मेथिलीन ब्लू. So the acidic stain is eosin, the basic stain is methylene blue. Same procedure. थोड़ी टाइम के लिए 5-7 मिनट 10 मिनट रखेंगे उसको, उसके बाद उसको टर्न कर देंगे तो एक्स्ट्रा मेथिलीन ब्लू गिर जाएगा. फिर हल्के पानी के साथ उसको वॉश कर देंगे ताकि एक्सेस मेथिलीन ब्लू भी निकल जाए. नाउ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दिस अंडर द माइक्रोस्कोप. आपको समझा? सो दोनों स्टेन्स देने के बाद आई ऑब्जर्व इट अंडर द माइक्रोस्कोप. नाउ बेस्ड ऑन दिस आई हैव टू टाइप्स ऑफ WBCs or leukocytes. Now those which will have granules in their cytoplasm. Granules का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे दाने जैसी चीजें. Okay, and another set of WBCs will have no granules
in their cytoplasm. So क्योंकि उनके पास granules नहीं है, their cytoplasm will appear clear like water. So clear cytoplasm. Now एक सेल में नॉर्मली ग्रैन्यूल्स होते क्या है? एक सेल में ग्रैन्यूल छोटे वैक्यूल्स होते हैं जिसमें कुछ चीजें रहती हैं ऐसे. ओके, तो अगर आप कोई एंडोक्राइन ग्लैंड देखोगे तो एंडोक्राइन ग्लैंड के सेल्स में भी ग्रैन्यूल्स होंगे. तो ग्रैन्यूल क्या होते हैं? वो सेल का अंदर वैक्यूल होता है और अंदर हार्मोन है. सो नॉर्मली कोई भी सिक्रीटिंग सेल होगा तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे. कोई चीज कुछ बना के, कोई सेल कुछ बना के बाहर निकाल रहा है तो उसके अंदर ग्रैन्यूल्स होंगे. तो ग्रैन्यूल्स आर बेसिकली टाइनी वैक्यूल्स जिसके अंदर कुछ सब्सटेंसेस होते हैं. तो कुछ WBCs के पास उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स होते हैं और कुछ WBCs के पास उनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स नहीं होते. So those with granules in the cytoplasm are simply called granulocytes, and those without granules in the cytoplasm are called agranulocytes. So granulocyte का मतलब क्या है? WBCs which have granules in their cytoplasm. Agranulocytes का मतलब है WBCs which don't have granules in their cytoplasm. Okay? ना जब मैं ग्रैन्युलोसाइट्स को देखता हूं, ठीक है, उनके अंदर न्यूक्लियस होता है. तो सपोज ये एक ग्रैन्युलोसाइट है, ये एक अग्रैन्युलोसाइट है. ग्रैन्युलोसाइट के साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ग्रैन्यूल्स दिखेंगे ऐसे, और इनके पास ग्रैन्यूल्स नहीं है तो ये क्लियर साइटोप्लाज्म. Now when I look at a granulocyte, they will have a nucleus something like this. So how many nucleus in one cell? Children, how many nucleus in one cell of a granulocyte? एक सेल के अंदर कितना न्यूक्लियस दिख रहा है आपको? कितना न्यूक्लियस मैंने बनाया? एक. Correct. So one cell has only one nucleus here. But in agranulocytes, when I look at it, okay, जब ये दूर से देखता हूं तो ऐसा लगता है कि एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है. बट जब मैं आगे ध्यान से देखता हूं तो ये दोनों न्यूक्लियस इंटरकनेक्टेड है. मतलब ये अलग अलग न्यूक्लियस नहीं है, ये एक ही न्यूक्लियस के दो पार्ट्स है. समझा? सो सच अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड अ लोब्ड न्यूक्लियस. लोब्ड न्यूक्लियस का मतलब क्या है? न्यूक्लियस ऐसे पार्ट्स में टूटा हुआ है कि दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि वो दो तीन न्यूक्लियाई है, बट एक्चुअली वो एक ही न्यूक्लियस है. और यहाँ पे तो क्लियर कट एक ही न्यूक्लियस है. तो इसका ऑपोजिट, अगर ये लोब्ड है तो ये अनलोब्ड न्यूक्लियस, मतलब नॉर्मल न्यूक्लियस. नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग. लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियस. अब न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स. क्या बता सकते हैं इसका नाम क्या है? न्यूक्लियस के अंदर जो नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स है उसका नाम क्या है? स्कूल में पढ़ा होगा. करेक्ट अदिति, करेक्ट अखिलेश. ओके ओके, वेरी गुड वेदिका, वेरी गुड श्रवणी, खुशी, सलोनी, अमन. सो बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. सेल दो फेजेस में होता है. एक सेल होता है रेस्टिंग फेज, जहां पे माइटोसिस नहीं हो रही होती है, और दूसरा वही सेल जाता है माइटोसिस या मियोसिस. माइटोसिस या मियोसिस का मतलब क्या है? उसको बोलते हैं डिवाइडिंग फेज. सो रेस्टिंग फेज वर्सेस डिवाइडिंग फेज, ये होते रहता है. तो सेल रेस्टिंग से बाद में थोड़ी देर के बाद डिवाइडिंग में जाएगा, फिर डिवाइडिंग के बाद वापस से रेस्टिंग होगा, फिर रेस्ट करके वापस से, है ना? सो व्हेन द सेल इज इन द रेस्टिंग फेज, the DNA is arranged in the form of a network of threads. The DNA was present in the form of a network of threads, and that was called chromatin network. Samjha? But when the cell is undergoing mitosis,
these chromatin network, the DNA जो फैल के है, जो बहुत spread होके है, it gets condensed to form small structures called chromosomes. So chromatin network और chromosomes एक ही चीज है. A spread out chromosome is chromatin network. Chromatin network is seen during resting phase. Chromosomes are seen during division phase or mitosis phase. Chromatin network and chromosomes are made up of DNA. If you didn't know, you've been doing this chromosome chromatin network since I think 7th 8th standard. अगर आपको आज पता चल रहा है कि chromatin network और chromosome एक ही है, you can type aha. If you find out, आपको आज पता चला है कि chromosomes और chromatin network एक ही थे, type aha. Okay. So when the nucleus, जब ये lobe nucleus है, वो कैसे होते हैं? ऐसा हो गया या ऐसा हो गया, राइट? इसके पास क्रोमैटिन नेटवर्क है, ये पार्ट के पास डीएनए है, करेक्ट? ये पार्ट के पास भी क्रोमोसोम क्रोमैटिन नेटवर्क है, डीएनए है. अब मुझे कैसे पता है कि ये तीन एक ही न्यूक्लियस है और तीन अलग अलग न्यूक्लियस नहीं है? वो पता है कैसे? इनके क्रोमैटिन नेटवर्क्स ओवरलैप हो रहे हैं ऐसे. सो ये एक दूसरे से कनेक्टेड है विद क्रोमैटिन नेटवर्क. ना क्योंकि ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये एक ही न्यूक्लियस के तीन पार्ट्स हैं. मतलब ये तीन अलग अलग न्यूक्लियाई नहीं है, ये एक ही न्यूक्लियस के तीन पार्ट्स हैं. इसको हम बोलते हैं ट्राइलोब्ड न्यूक्लियस. वन न्यूक्लियस थ्री पार्ट्स. तो ये जो बीच में जो हैंग हो रहा है, ये जो बीच में हैंग हो रहा है वो है क्रोमैटिन थ्रेड या क्रोमैटिन नेटवर्क. ठीक है ना? ये जो बीच में हैंग हो रहा है इसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन नेटवर्क. Did we understand this? How many number of lobes can be there वो मैं बताता हूं जैसे जैसे अभी आगे पढ़ाऊंगा. वरुण, नॉर्मली एक न्यूक्लियस होता है और उस एक न्यूक्लियस के पास एक क्रोमैटिन नेटवर्क होते हैं, करेक्ट? अब ग्रैन्युलोसाइट्स में जब मैं दूर से देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये तीन न्यूक्लियस है, तीन न्यूक्लियाई है ना? एक सेल के अंदर तीन न्यूक्लियाई है. बट जब मैं गौर से देखता हूं तो क्या पता चलता है कि ये तीनों का क्रोमैटिन नेटवर्क एक ही है. मतलब ये यहाँ का क्रोमैटिन नेटवर्क बाहर निकल के यहाँ पे आ रहा है, यहाँ का क्रोमैटिन नेटवर्क, समझा? सो इसका क्या मतलब है? ये तीन अलग अलग न्यूक्लियाई नहीं है, ये एक ही न्यूक्लियस है जिसके तीन पार्ट्स हो गए. मतलब शायद ये न्यूक्लियस पहले ऐसा रहा होगा, फिर धीरे धीरे करके कुछ शायद ऐसा हुआ होगा, शेप में ऐसा बना होगा, और थोड़ा सा डिस्टिंक्ट होके फिर शेप ऐसा बन गया. समझा? और इन दोनों के बीच में कनेक्शन किस चीज का है? सेम क्रोमैटिन नेटवर्क का. So rather than calling them three different nuclei, we say it is one nucleus but having three lobes. ठीक है? चलो. Okay, Varun. Then we will move ahead. So the cells which have granules in their cytoplasm will have lobes in their nucleus, and cells which don't have granules in their nucleus, in their cytoplasm, will not have lobes in their nucleus. Okay. Now, granulocytes and agranulocytes, both of them are formed in the red bone marrow. Okay. But normally, granulocytes are moving in blood. Okay. Agranulocytes, on the other hand, children, they are stored in the body to be used later on. So they are actually stored in spleen. Okay. They are stored in thymus करके एक gland होता है, thymus. Okay. They are also stored in tonsils. Aman, what is spleen? Lecture के शुरुआत में spleen बताया था. Spleen is an organ in the abdominal cavity. Yes, just below the diaphragm. Right side पे liver है, left side पे spleen है.
So spleen stores some amount of granulocytes. Thymus is a gland in our neck. Thymus is a gland in our chest region. Okay. Tonsils किधर होता है tonsils? आप में से कितने लोगों को tonsils नहीं हुआ है कभी? कभी टॉन्सिल आया ही नहीं है? कितने लोगों को टॉन्सिल नहीं आया है कभी? देखो मुझे टॉन्सिल नहीं है. वेरी गुड. वेरी गुड. नाउ सबसे पहले तो हाँ वेदिका, सम लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन आई डोंट हैव टॉन्सिल्स. मुझे कभी टॉन्सिल नहीं आया. बाय द वे, सबको टॉन्सिल होता है. आपको अगर टॉन्सिल नहीं आया है तो इसका मतलब आप म्यूटेंट हो, आपके बॉडी में कुछ म्यूटेशन हुआ है. टॉन्सिल सबको आता है. अभी पता तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, हाँ संकेत बराबर, प्रॉब्लम ये है कि द वे वी से थिंग्स है ना. लाइक अगर एक बीमारी चलती है इंडिया में अगर, विच इज कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस. सबने सुना है कंजंक्टिवाइटिस है ना? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुझे आंख आया है ना, डोळे आले, मतलब अभी अभी आंख आया है, पहले आंख नहीं था. एग्जैक्टली. सो इट इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजंक्टिवा, राइट? वैसे ही टॉन्सिल्स सबके पास होता है, बट जो डिजीज जिसमें इन्फ्लेमेशन होती है उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस. तो जिसको टॉन्सिलाइटिस होता है उसको नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बोलते हैं इसको टॉन्सिल आया है. बाय द वे, टॉन्सिल होता सबके पास है, बट सब में वो इन्फ्लेमेशन या सब में उसमें डिजीज नहीं होती है. तो नेक्स्ट टाइम कोई आपको पूछेगा कि आपको टॉन्सिल आया है, तो आप बोलना टॉन्सिल मेरे पास है, आपके पास है, सबके पास टॉन्सिल है, मुझे टॉन्सिलाइटिस कभी नहीं हुआ है. अगर 440 वोल्ट का झटका लगा है, यू कैन राइट 440 कि टॉन्सिल तो यार मुझे नहीं हुआ था. ओके, नाउ ग्रेट. निरंजन को 220 का झटका लगा. वेरी गुड. चलो, नाउ व्हेन यू ओपन समबडीज माउथ, ये आप अपने माउथ में तो नहीं देख सकते हो अनलेस मिरर में देख रहे हो तो, है ना? तो किसी का मुंह ओपन करोगे तो ऐसा टंग बाहर निकल के आ रहा है, राइट? और ऊपर से, मतलब ऊपर के फ्लोर से एक ऐसा हिलता हुआ चीज नजर आता है ऐसे, है ना? ये अपना टंग है और ऊपर से माउथ के रूफ से एक ऐसा चीज लटकती हुई नजर आती है. इसको बोलते हैं यूव्यूला. क्या बोलते हैं? यूव्यूला. जब कोई खर्राटे मारता है, सुना है ना, खर्राटे मारता है, तो बेसिकली हवा इस यूव्यूला से पार होती है और ये यूव्यूला वाइब्रेट होता है. और क्योंकि ये यूव्यूला वाइब्रेट होता है, आवाज आती है खर्राटों की. तो खर्राटों के लिए पता है क्या होना चाहिए? अभी बताता हूं खर्राटे कब आएंगे. खर्राटे तब आते हैं जब आप मुंह से सांस लोगे. तो रात को अगर कोई इंसान मुंह से सांस ले रहा है तो हवा सामने से आएगी, और हवा अगर सामने से आएगी तो यूविला वाइब्रेट होगा. अगर नोज से आता है तो नोज हवा के पीछे जाता है, सॉरी, नोज से हवा जाता है तो हवा यूविला के पीछे जाता है, तो हवा हिलता नहीं है यूविला. तो लोग जो खर्राटे भरते हैं वो दे आर कॉल्ड माउथ ब्रीदर्स. समझा? तो बेसिकली माउथ ब्रीदर का मतलब क्या है? उनके कुछ तो प्रॉब्लम होता है, उसके वजह से वो मुंह खोल के सोते हैं, है ना? और क्योंकि अमन, मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ लिया तेरा बात, सब में आता हूं मैं. तो दे आर माउथ ब्रीदर्स. ओके,
and the uvula moves. ठीक है. Anyways, coming back to tonsil. तो on the sides यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक ऐसा फोल्ड रहेगा और इस फोल्ड के अंदर एक पिंक कलर का छोटा मसल जैसा दिखेगा. ठीक है. ये जो पिंक कलर का मसल जैसा दिखता है इसको हम बोलते हैं टॉन्सिल्स. ठीक है. इसको बोलते हैं टॉन्सिल. तो ये आधा मुंह में होता है और थोड़ा सा आधा नेक में चला जाता है. ठीक है. बट टॉन्सिल्स आर जस्ट वन अमंग्स द एंटायर ग्रुप. ओके. अंदर इसके तरफ जबान के नीचे अंदर की तरफ कैविटी के अंदर कुछ और टॉन्सिल जैसा स्ट्रक्चर होता है जो दिखेगा नहीं, पर मैं यहां दिखाने की जबरदस्ती कोशिश कर रहा हूं. नीचे की तरफ होता है इस जबान के नीचे यहां पे. इसको हम बोलते हैं एडिनॉइड्स. ठीक है अमन, आगे एडिनॉइड्स. कैन वी टच आवर टॉन्सिल्स? यस यू कैन. तो एडिनॉइड्स भी टॉन्सिल जैसे ही होता है. ठीक है. तो कुछ बच्चों में बार बार टॉन्सिल में इन्फ्लेमेशन होते रहता है या एडिनॉइड्स में इन्फ्लेमेशन होते रहता है, तो उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस. और जब ये टॉन्सिल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं तो मुंह सूज जाता है. अगर देखो, अगर ये सूज गया तो ये ऐसा होगा, बड़ा हो जाएगा, है ना. अगर ये स्वेलअप हो गया तो ऐसा स्वेलअप हो जाएगा. सो खाना खाने में, गल्प डाउन करने में तकलीफ होगी. तो डॉक्टर्स उसको दवाई देके ट्रीट करने की कोशिश करेंगे. बट अगर टॉन्सिलाइटिस बार बार हो रहा है, सपोज एक बच्चे को 4 5 6 बार हुआ, तो डॉक्टर बोलता है यार इसका टॉन्सिल वीक है, तो बार बार ये टॉन्सिल इन्फेक्ट हो रहा है. तो डॉक्टर्स, अगर आपका टॉन्सिल बार बार इन्फेक्ट हो रहा है तो आपके टॉन्सिल्स को कट करके निकाल दिया जाता है. अ प्रोसेस इन विच things are cut is called tonsillectomy. समझा? tonsillectomy. Now the good part is tonsil क्या है, का काम क्या है? स्प्लीन, थाइमस, टॉन्सिल, इनका काम क्या है? इनका काम है अग्रैन्युलोसाइट्स को स्टोर करना. तो अगर यस, एक्टमी मीन्स टू कट. तो अगर ये टॉन्सिल्स ये जो है, अगर ये अग्रैन्युलोसाइट्स स्टोर करते हैं, वो निकल जाएंगे सपोज, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज स्प्लीन, थाइमस और बाकी सब जगह पे भी अग्रैन्युलोसाइट स्टोर होते हैं. बहुत सारे जगह पे अग्रैन्युलोसाइट स्टोर होते हैं, है ना. और अगर अग्रैन्युलोसाइट स्टोर होते हैं तो क्या होगा? टॉन्सिल बार बार अगर इन्फेक्ट हो रहा है, बार बार, अच्छा क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स टॉन्सिलाइटिस बच्चों में होता है. ठीक है. क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती है. तो बार बार अगर बच्चा इन्फेक्ट होके बार बार हॉस्पिटल में जा रहा है, बार बार बुखार रह रहा है, तो उससे अच्छा टॉन्सिल निकाल दे. एक बार टॉन्सिलाइटिस हुआ और तुरंत निकाल देते, ऐसा नहीं करते. अगर किसी बच्चे को बार बार 5 6 बार टॉन्सिलाइटिस हुआ है 2 3 साल में, तो हम बोलते हैं यार इसका टॉन्सिल को रख के कोई फायदा नहीं है, है ना. लाइक अब जब ये ऑपरेशन करते हैं, जिन लोगों ने ऑपरेशन किया होगा, तो यहाँ पे जब कट किए, तो क्योंकि हमने कट किया तो रेडनेस, स्वेलिंग तो रहेगा ना. तो इसके लिए आइसक्रीम बोलते हैं खाने को. ठीक है. आइसक्रीम क्या होता है? ठंडा होता है. तो क्योंकि ये कोल्ड एरिया होता है, यहाँ पे जितना भी सूजन है वो कम हो जाता है. सर्जरी के बाद भी तो सूजन होगा ना. after I perform surgery, the swelling will still be there, the redness will be there. तो इसीलिए उसको कोल्ड खाने को बोलते हैं, ताकि वो स्वेलिंग खत्म, कम हो जाए टॉन्सिल निकालने के बाद. ओके. कुछ बच्चों ने पूछा है सर टॉन्सिल स्टोन क्या होता है? कभी कभी टॉन्सिल के अंदर, ओके, टॉन्सिल के अंदर कुछ आयोन्स प्रेसिपिटेट कर जाते हैं. ठीक है. मतलब अगर कुछ आयोन्स या कुछ चीज अटक गई और ड्राई हो गई, तो ड्राई होके वो सॉलिड हो जाएगा. नॉर्मली वो लिक्विड होना चाहिए, राइट. बट कुछ चीज ड्राई होके सॉलिड हो गई, तो उसको हम बोलते हैं टॉन्सिल स्टोन. ठीक है. टॉन्सिल्स निकालने का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है. हल्के से स्टिचेस मारे जाते हैं बिकॉज आपने कट किया हुआ है. तो ये सब आपके टॉन्सिल का
ठीक है, so that is agranulocytes. ठीक है, so let me clear this off, let me clear this as well. Okay, so there are two types of WBCs, granulocytes and agranulocytes. Okay, दो और क्वेश्चंस आए वो लेता हूं मैं. एडिनॉइड्स और टॉन्सिल का फंक्शन सेम ही होता है. दे आर बेसिकली हेल्पफुल इन स्टोरेज ऑफ ग्रैन्युलोसाइट्स. एडिनॉइड्स आर अ टाइप ऑफ टॉन्सिल्स ओनली. ओके, यूवुला का काम क्या है? यूवुला जब पीछे की तरफ जाता है तो नॉस्ट्रिल बंद कर देता है. तो यूवुला है ना, जब पीछे की तरफ टर्न होगा तो नोज बंद कर देगा. तो बेसिकली जब हम खाना खाते हैं तो खाना यूवुला को पीछे की तरफ पुश करता है. तो जब पीछे की तरफ यूवुला पुश होता है तो खाना नाक में वापस नहीं जाता. ओके, सो यूवुला का काम है नोज, खाना को नोज में नहीं जाने देना. ठीक है आदित्य? आई हैव हर्ड दैट पीपल आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी बिकम मोर. नो, देयर इज टॉन्सिलेक्टमी के बाद टीबी वीबी होगा या कोई डिजीज होगा, इसका कोई ये नहीं है. बिकॉज अगर आपका स्प्लीन, थाइमस और बाकी ऑर्गन्स बराबर है तो आपका इम्यून सिस्टम सही रहता है. ठीक है, बस I will have to stop here because it's deflecting from my topic. So we were talking about granulocytes and agranulocytes. Let's look at granulocytes first. Okay, the first type of granulocytes are called basophils. The second type of granulocytes are called eosinophils. And the third type of granulocytes are called neutrophils. Okay. Now, what is the meaning of the word fill? Yes, come on. What is the meaning of the word fill? Suffix fill रहेगा तो क्या मतलब होता है उसका? Suffix fill का मतलब क्या होता है? नहीं अमन, वो PHYLL था. Aditya, that was PHYLL. This is PHIL. Yes, Khushi, you're correct. Niranjan, Bharat, Sanket. No. Fill का मतलब होता है to love, okay, or to attract. So basophils, they are cells which will love basic stains. So what are basophils? They are cells which will love basic stains. What does that mean? That means their cytoplasmic granules will take up what stain, children? Will take what stain? Basic stains like methylene blue. Correct? Why are eosinophils called eosinophils? Because they will have granules in their cytoplasm. Their cytoplasmic granules will take what? Will take acidic stains. And what is the name of that acidic stain? That acidic stain is eosin. Now याद रखना, कुछ लोग eosinophils को एसिडोफिल्स भी बुलाते हैं, है ना? कुछ लोग eosinophils को acidophils भी बुलाते हैं. That is also correct because eosin is an acidic stain. So what do you think would be neutrophils? Neutrophils? क्या होगा neutrophils? Now this is interesting. Neutrophils, हाँ, ये वर्ड न्यूट्रल आ जाता है, इसके वजह से बहुत लोग गड़बड़ करते हैं. In neutrophils, the cytoplasmic granules will, no, it will not be neutral. It will take up both acidic stains and basic stains. समझा? Now let me put it in this way now. कैसे होगा neutrophils के granules? तो जब हम पहले एसिडिक स्टेन डालेंगे तो eosinophils के ग्रैन्यूल्स उसको ले लेंगे और न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स भी एसिडिक स्टेन को ले लेंगे. फिर जब हम बेसिक स्टेन डालेंगे
तो बेसोफिल्स के ग्रैन्यूल्स उसको ले लेंगे और न्यूट्रोफिल्स के ग्रैन्यूल्स भी उसको लेंगे. अब मेरे को बताओ, टाइप इट इन द चैट बॉक्स एंड टेल मी. यू आर सपोज टू राइट बेसो, इओसिनो एंड न्यूट्रो. व्हाट विल बी द कलर ऑफ ग्रैन्यूल्स जो मैं माइक्रोस्कोप में देखूंगा ऑफ बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स. तीनों एक ही सेंटेंस में लिखना. बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड न्यूट्रोफिल्स तीनों एक स्टेज में लिख के बताइए फटाफट. क्या कलर होंगे ग्रैन्यूल्स के? वेरी गुड पाकी, यू आर एब्सोल्युटली राइट. खुशी, यू आर राइट. सोचिए, बेसोफिल्स विल टेक बेसिक स्टेन, तो उनका कलर क्या होगा ग्रैन्यूल्स का? बेसिक स्टेन का ग्रैन्यूल का कलर क्या होता है? यस, सो बेसोफिल्स के ग्रैन्यूल्स का कलर होगा ब्लू, इओसिनोफिल्स के ग्रैन्यूल्स का कलर होगा रेड, और न्यूट्रोफिल्स ने दोनों स्टेन्स लिया ना, ब्लू भी लिया और रेड भी लिया, सो इट विल बी वायलेट और पर्पल. Violet or purple. So the color of basophil granules, it will be blue here. The color of eosinophil granules will be red here, and the color of neutrophil granules will be violet or purple. Blue plus red is violet or purple. सबको समझा? सो न्यूट्रोफिल्स आर नॉट न्यूट्रल. ऐसा न्यूट्रल नहीं है, तो इसका नाम न्यूट्रोफिल क्यों है? बिकॉज बेसोफिल लव्स ओनली बेसिक स्टेन, eosinophil loves only red acidic stain. Neutrophils don't have any special preference. They have a neutral preference. They love both. That is why they are called neutrophils. Okay. Now, when I look at the size of basophils out of the three are smallest. So this is going to be around 8 micrometers. Okay. So it has eosinophils have around 10 micrometers. Neutrophils also have 10 micrometers. So there's a range. This is anywhere from 8 to 10 micrometers. This is anywhere from 10 to 12 micrometers. This is also anywhere from 10 to 12 micrometers. But neutrophils, even though they fall in the same range, कोई भी organism में neutrophils are larger than eosinophils. So हमारा डिस्कशन किस पे चल रहा है? Our topic is granulocyte. So can I safely say that the largest granulocytes are neutrophils? The largest granulocytes are neutrophils. Okay. Now, if I look at their cells, how will the cells look like? Let's understand that also. So this would be a basophil. This would be an eosinophil. थोड़ा सा बड़ा न्यूट्रोफिल. ठीक है. बेसोफिल में ब्लू कलर के ग्रैन्यूल्स, यस. इओसिनोफिल में रेड कलर के ग्रैन्यूल्स. अब मेरे पास यहाँ पे पर्पल नहीं है, तो मैं क्या करने वाला हूँ पता है? रेड बनाऊंगा, करेक्ट, रेड ग्रैन्यूल्स, है ना, और उसके ऊपर ब्लू डाल देता हूँ. ठीक है. तो ये आपको समझ में आना चाहिए, मतलब जस्ट फॉर योर रेफरेंस, बिकॉज इट इज टेकिंग अप बोथ द स्टेन्स. अब उसके अंदर न्यूक्लियस रहता है. ठीक है. तो व्हेन आई लुक एट द बेसोफिल का न्यूक्लियस, it has one lobe like this, the second lobe is twisted like this, and the third lobe is twisted like this. ठीक है. So the three lobes are twisted around each other. मतलब इधर का क्रोमैटिन नेटवर्क ऐसा रहेगा, फिर ऐसा आ जाएगा और ऐसा ट्विस्ट हो गया. So what is the nucleus shape of basophils? They have a twisted nucleus. Can you look at the shape and tell me what is the shape of the nucleus here? Which alphabet does it resemble? Which alphabet does it resemble? हाँ, जितने लेफ्टी है वो लोग सब बोल रहे हैं Z, बट मेरी 4 साल की बेटी है,
उसको भी आएगा कि ये S दिख रहा है आपको, मैंने बनाया S है. Yeah, you can call it Z also, but normally it is known as the S-shaped nucleus or twisted nucleus. ये Z कैसे दिख रहा है रे तुम लोगों को? हैं? कौन से लैंग्वेज में Z दिख रहा है ये? चलो. Now when I look at the nucleus, eosinophils actually appear to have two lobes. So eosinophils appear to have two lobes like this. है ना? And these lobes are interconnected by chromatin network like this. So we say that this is bilobed nucleus. ठीक है, bilobed nucleus हम बोलते हैं. Now this looks like something which most of the students in this classroom are wearing right now. This looks like your specs, है ना? दो चश्मे के बीच में मतलब गांधी जी का स्पेक्स टाइप लगता है. That is why people also call this as the spectacle shaped nucleus. Okay, क्या बोलते हैं उसको? The spectacle shaped nucleus. Bilobed, also known as the spectacle shaped nucleus. Okay. Now, when I look at neutrophils, neutrophils are interesting. Neutrophils में, in neutrophils, एक ही इंसान में तीन तरह के न्यूट्रोफिल्स मिलते हैं. In one person only, three types of neutrophils will be seen. Some neutrophils have 3 lobes, some neutrophils have 4 lobes, and some neutrophils even have 5 lobes. So generally ऐसा मानते हैं कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो जब बनते हैं वो 3 lobes के होते हैं. जैसे जैसे वो मैच्योर होते जाते हैं वो 4 या 5 lobes के हो जाते हैं. So they may have 3 lobes, they may have 4 lobes, or they may have 5 lobes. The point that you need to understand here is कि ये अलग अलग इंसानों में नहीं हो रहा है, ये एक ही इंसान में हो रहा है. Did we understand? मतलब ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि ये X इंसान में, Y और Z में, ये वन पर्सन में ही कुछ उसके न्यूट्रोफिल्स में 3 लोब्स होंगे, कुछ न्यूट्रोफिल्स में 4 लोब्स होंगे और कुछ न्यूट्रोफिल्स में 5 लोब्स होंगे. Now, all eosinophils will have only 2 lobes in their nucleus. All basophils will have a twisted or S-shaped nucleus. But because neutrophils have 3 types of nuclei, 3 अलग-अलग types of cells होते हैं neutrophils में, so that is why we also call them PMN leukocytes. ल्यूकोसाइट का मतलब होता है WBC. PMN क्यों बोलते हैं उसका मतलब समझ लेते हैं. P stands for poly. Poly का मतलब क्या होता है बच्चे लोग? Poly means many. Then M stands for morpho. Morpho का मतलब होता है structure. And N stands for nuclear. Okay, तो PMN nucleosides are called polymorphonuclear leukocytes, also called PMN leukocytes. मतलब एक ही सेल के 3 अलग अलग स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस है ना? पॉली मतलब मेनी, 3 अलग अलग टाइप. मॉर्फो मतलब 3 अलग अलग स्ट्रक्चर है. न्यूक्लियर मतलब किसका स्ट्रक्चर अलग अलग है? न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर अलग अलग है. तो इसीलिए उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स. पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूक्लियोसाइट्स कौन है? न्यूट्रोफिल्स. Okay, so just a quick recap of granulocytes. There are 3 types of granulocytes: basophils, eosinophils, and neutrophils. Basophils have cytoplasmic granules which will take up basic stains or like methylene blue. Hence their granules will appear blue in color. Eosinophils will have cytoplasmic granules which will take acidic stains and they will appear red in color. So they are eosinophils. Then neutrophils will take up cytoplasmic granules, which take up both acidic as well as basic state.
Okay. Then basophils are 8 to 10 micrometers in diameter. Eosinophils are 10 to 12, and neutrophils are also 10 to 12, but neutrophils are slightly larger than eosinophils. So out of the three cells, the largest blood cell, largest WBC is neutrophil, or rather, largest granulocyte is neutrophil. Okay. Now, basophils will have a twisted or S-shaped nucleus. Eosinophils will have a bilobed nucleus. Okay. And neutrophils will have a trilobed, tetralobed, or pentalobed nucleus. That is why they are called polymorphonuclear leukocytes, because they have different types of nucleus. Now basophils, if I have to अभी WBCs है, तो सारे WBC में से कितने basophils होते हैं? Okay, around 1%. Okay, so I can say half to 1% of total WBCs are basophils. मतलब अगर किसी का WBC काउंट 5000 है ना, 5000 पर मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड, सो 5000 का 1% कितना हुआ? 50. तो 5000 में से करीब 50 सेल्स बेसोफिल्स के होंगे. समझा? So 0.5 to 1%. Eosinophils range anywhere from 2 to 3%. Eosinophils will be ranging anywhere from 2 to 3%. Can you guess what will be the function of neutrophils? What will be the percentage of neutrophils? Very good. So neutrophils range anywhere from 60 to 65%. Now, इसका मतलब क्या है? Can I safely say that out of all the WBCs, neutrophils are maximum in quantity? Now they are maximum in quantity, समझ लो, क्योंकि उनका functions क्या है? ये जो neutrophils होते हैं, वो actually go to the microorganism. Okay, they will form a pseudopodium around the microorganism. एक वापस से ऐसा करेंगे, फिर क्या करेगा, ये इसको इसमें ट्रैप कर लेंगे, करेक्ट, और अंदर लाइजोजाइम्स करके, लाइजोसोम्स करके अपना एक सेल ऑर्गेनल होता है, करेक्ट, उससे एंजाइम डाल के इसको मार डालेंगे. दिस इज व्हाट इवन अमीबा ईट्स अप, राइट? अमीबा भी खाना ऐसे ही खाता है. And that process of engulfing is called phagocytosis. So neutrophils are called phagocytes. Why are they called phagocytes? Because they actually go and perform phagocytosis. Neutrophils will actually go and perform phagocytosis. Now ये सबसे important function है WBC का, जहाँ पे वो जाके phagocytosis करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएगा, engulf करेगा बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, and that process is called phagocytosis. Okay. Now what are basophils? What do basophils do? Now people, those who are new, don't mind. Earlier classes में हमने पढ़ाया था कि there are cells of connective tissue called mast cells. Mast cells of connective tissue. याद है? So basophil cells are actually homologous to mast cells. मतलब if you can hear me clearly, please type yes. Vedika, if you can't hear me, that means there's some problem with the internet on your side. Okay, great, because everybody else can hear me. So basophils are cells which are basophil cells are those cells which are homologous to mast cells of connective tissue. And what was mast cells producing? Basophil भी वही produce करते हैं. They produce histamine. They also produce heparin. Yes. So histamine, heparin,
क्या काम है हिस्टामिन और हिपैरिन का? एंड सम बुक्स आल्सो से दे प्रोड्यूस सेरोटोनिन. तो हिस्टामिन का क्या काम है? हिस्टामिन कॉजेज इन्फ्लेमेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड इन्फ्लेमेशन? जो भी एरिया है वहां पे देयर विल बी रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हीट. सो रेडनेस, स्वेलिंग, पेन एंड हीट करेगा बेसोफिल्स. ओके. बेसोफिल also will produce heparin, which is an anticoagulant. Okay. Histamine is a vasodilator. तो जहां पे भी बेसोफिल्स मतलब हिस्टामिन जाएगा वहां पे ब्लड वेसल्स खुल जाएंगे. एंड सेरोटोनिन इज अ वाजो कंस्ट्रिक्टर. तो अगर बहुत ज्यादा हिस्टामिन की एक्टिविटी होगी तो बेसोफिल्स तो सेरोटोनिन उसको रिड्यूस कर देगा. ओके. Sanket, we'll answer to your question in the next class because we have details of what happens in different diseases. Okay. Chalo. Last cell is called eosinophil. Now, children, eosinophil is actually a detoxifying cell. मतलब क्या होता है? जितने भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे उनको ये रिमूव करेगा. मतलब ये क्या करता है पता है? Whenever any body which is not a part of the human body enters the human body identifies that body as a foreign body and generates another body called antibody. है ना? Antibodies are chemicals which are used to kill antigens, foreign bodies. तो जब वो मर जाते हैं तो मतलब कैसे होता है? एंटीजन पे जाके एंटीबॉडी चिपकता है. एंटीजन इज फॉरेन बॉडी. एंटीजन पे जाके एंटीबॉडी चिपकता है ना? जब एंटीजन पे जाके एंटीबॉडी चिपकता है तो एक चीज बनती है कॉल्ड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स. और ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जब एंटीजन को मार देता है फिर भी रहता है ब्लड में. तो इओसिनोफिल्स जाके ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स हटा देते हैं. ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स निकाल देते हैं. Did we understand this? So basically what they will do is एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स को निकाल दिया जाएगा. ठीक है. नाउ हैव यू हर्ड ऑफ अ डिजीज कॉल्ड एलर्जी? व्हाट हैपेंस इन एलर्जी? बताओ, व्हाट हैपेंस इन एलर्जी? ओके. सो सबसे पहले तो एलर्जी इज एन अबनॉर्मल रिस्पॉन्स. सब लोगों को एलर्जी नहीं होती है. Yes, Aman, you're right. Now, basically, it is, yes, you are right, Panki. It is an overreaction of immune system. Okay. एलर्जी को हम हाइपर सेंसिटिविटी भी बोलते हैं. हाइपर का मतलब होता है बहुत ज्यादा. हाइपर सेंसिटिविटी. तो बेसिकली इओसिनोफिल क्या करता है कि अगर बेसिकली एलर्जी में कुछ लोगों को एलर्जी क्यों होती है? सपोज कोई चीज नॉर्मली हमारे बॉडी में जाती है, 99% वो हार्मफुल नहीं है, बट कुछ कुछ लोगों की बॉडी उसको आइडेंटिफाई करती है. फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन्स. ओके. छोटे मोटे पोलन ग्रेन्स अगर हमारे नाक में चले जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा हमको एक छींक आएगी और उस छींक से हम पोलन ग्रेन्स को निकाल देंगे. बट कुछ कुछ लोगों में जैसे ही पोलन ग्रेन्स जाता है इम्यून सिस्टम को लगता है यार बहुत बड़ी चीज आ गई है. सो इम्यून सिस्टम बहुत सारा हिस्टामिन, बहुत सारा चीजें उस पर तोड़ने की उसको कोशिश करता है और उसके वजह से लोगों को फीवर भी आ जाता है. ऐसे फीवर को हम बोलते हैं हे फीवर, है ना, या एलर्जिक फीवर. उसका नोज रेड हो जाता है, नाक से फ्लूइड बहने लगता है. सो ऑल दैट इज कॉल्ड एलर्जी टू पोलन ग्रेन. ठीक है. सो एलर्जी इज दैट. मोस्ट कॉमनली अगर आप कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लगाओ, कॉस्मेटिक का मतलब है जो स्किन पे लगाया जाता है, ठीक है, जैसे पाउडर्स हो गए या फाउंडेशन क्रीम्स हो गए, है ना,
या बहुत बार ज्वेलरी हो गई, आर्टिफिशियल ज्वेलरी अगर आप पहनते हो तो आपका स्किन उसके ऊपर एलर्जी या रिएक्ट कर जाता है, करेक्ट। तो वहां पे छोटे छोटे दाग, रेडनेस, स्वेलिंग आ जाती है, राइट। तो उसको भी हम एलर्जी बोलते हैं। तो अलग अलग लोग अलग अलग चीज से उनको एलर्जी होती है। यूएस में बहुत कॉमन एलर्जी है पीनट एलर्जी, है ना, या नट्स की एलर्जी होती है, करेक्ट। बहुत सारे लोगों को नट की एलर्जी है, बहुत सारे लोगों को मिल्क की एलर्जी होती है, ठीक है। तो बेसिकली उनकी इम्यून सिस्टम ज्यादा काम करता है। नाउ से फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी चीज की एलर्जी हुई, जैसे आपने कॉस्मेटिक लगाया, राइट, स्किन पे कोई पाउडर लगाया और उसके ऊपर आपको रेडनेस स्वेलिंग आ गई, तो आप फटाफट पानी से उसको धो दिए, फिर भी वो एलर्जी थोड़े टाइम तक रहती है। बट क्या वो एलर्जी जिंदगी भर आपके साथ, मतलब वो एक बार स्किन का स्वेलिंग आया, अगर वो एक बार स्किन का ये आया तो वो जिंदगी भर रहता है कि अपने आप निकल जाता है, अपना बॉडी निकाल देता है उसको, निकाल देता है, करेक्ट। तो बेसिकली एलर्जी में क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा एंटीबॉडीज बनाता है एक ऐसे चीज के लिए जिससे अपने को नुकसान होने ही वाला नहीं। इसके लिए इसको बोलते हैं एलर्जी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीफिक्स एलो? एलो क्या होता है? एलो, आई एम श्योर आपने ये सुना होगा। यस अदिति, एलो का मतलब होता है डिफरेंट। अर्ग क्या होता है? अर्ग वो एलॉय है। एलो का मतलब होता है डिफरेंट, एलॉय का मतलब कंबाइनिंग डिफरेंट थिंग्स। एलो मतलब डिफरेंट। अर्ग का मतलब क्या होता है? अर्ग, यस वेदिका, एलोपैथी मतलब डिफरेंट पति। अर्ग किस चीज का यूनिट है? यस निरंजन, किस चीज का यूनिट है अर्ग? एनर्जी का, करेक्ट। सो अर्ग मींस एनर्जी, सो एलो मतलब डिफरेंट, अर्ग मींस एनर्जी, सो डिफरेंट एनर्जी या डिफरेंट रिएक्शन टू द बॉडी इज कॉल्ड एलर्जी। और यही सारी चीजें जब किसी में अबनॉर्मली होती है तो हम उनको एलर्जी बोलते हैं। तो एलर्जी में बेसिकली क्या है, जो चीज से खतरा नहीं है उस चीज के खिलाफ भी बहुत एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो जब बहुत एंटीबॉडीज बनता है तो बहुत एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस भी बनेगा, और जब बहुत एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेगा, ठीक है, तो कौन सा सेल उसको बाद में निकालने की कोशिश करेगा? उसको निकालने की कोशिश करेगा इओसिनोफिल्स, ठीक है ना। तो सपोज अगर किसी को एलर्जी होती है, ठीक है, और एलर्जी के थोड़े टाइम के बाद अगर मैं उसका ब्लड लेता हूं तो उसमें इओसिनोफिल्स बढ़े रहेंगे। क्यों बढ़े रहेंगे? बिकॉज इओसिनोफिल का काम है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स निकालना। तो एलर्जी में जहां पे भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होंगे, एलर्जी में ज्यादा बनते हैं, तो इओसिनोफिल्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे ताकि वो ज्यादा एंटीबॉडीज को निकाल सके। ओके, so the three types of blood cells are basophils, eosinophils, neutrophils. Okay, now you have to remember these three types of cells. I might extend by about 5-7 minutes if that is okay. If it's okay, type okay. All right. So the next group of blood WBCs are called agranulocytes. Agranulocytes क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनके पास होता है क्लियर साइटोप्लाज्म, है ना। अब उस क्लियर साइटोप्लाज्म के अंदर वाले दो सेल्स होते हैं, एक जिनका न्यूक्लियस ऐसा होता है और एक जिनका न्यूक्लियस ऐसा होता है। ओके, सो एक ऐसा सेल रहेगा जिसका न्यूक्लियस क्या शेप्ड है, एक ऐसा सेल है जिसका, so this, what is this shape? So this is called kidney shape.
अच्छा, by the way, what is the shape of the kidney? What is kidney shape? Very good, Suramya. संकेत, निरंजन, सबने सही लिखा. The kidney shape is like bean. Very good, bean shape. So what is the shape of the bean? If kidney shape is bean shape, then what is the shape of the bean? Very good. कुछ लोग लिख रहे हैं kidney shape. Shape of kidney is like the bean. Shape of bean is like the kidney. Very good. So there is a scientific word for it. Okay. The scientific word for this shape is reniform. Yes, reniform. रेने का मतलब होता है किडनी एंड आईफॉर्म का मतलब होता है लाइक. So we say that these cells have kidney shape or reniform nucleus. मतलब kidney shaped nucleus. And these cells, the other cells will have oval to circular nucleus. Now when I look at these big cells are 12 to 14 micrometers in size. Whereas if I look at these small cells, they are just about 8 micrometers. 8 के आसपास रहते हैं, 8 to 10 भी नहीं रहते, 8 माइक्रोमीटर्स ही हम बोलते हैं. So अगर आप पहले का याद करो तो बेसोफिल्स के 8 to 10 है, इओसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स के 10 to 12 है, उसमें न्यूट्रोफिल्स बड़ा है. Can I say ये सेल सबसे बड़ा है, ये वाला? This cell is called monocyte. Now normally WBC cells will work in groups. जैसे बेसोफिल works in groups, न्यूट्रोफिल works in groups, इओसिनोफिल works in groups. ये जो सेल्स है ये बड़े होते हैं, सबसे बड़े सेल्स होते हैं. Okay, and they work alone, and because they work alone they are called monocytes. What are they called? Monocytes. Mono का मतलब होता है same, alone, single. And these smallest cells are found in a fluid in our body called lymph. They were discovered first in lymph, so they are also called lymphocytes. We also know that they are also found in blood. So, interesting thing, monocytes are the largest WBC and lymphocytes are the smallest WBCs. Monocytes are the largest WBCs, lymphocytes are the smallest WBCs. Okay. Now, because monocytes are largest, they also perform the function of phagocytosis. So, हमारे WBCs में दो सेल्स है जो फेगोसाइट्स है. कौन से दो सेल्स फेगोसाइट्स हैं? एक न्यूट्रोफिल्स जो कि ग्रैन्युलोसाइट है और एक मोनोसाइट जो कि अग्रैन्युलोसाइट है. So neutrophils and monocytes, both of them are phagocytes. But दोनों में फर्क क्या है? न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट दोनों सेल्स में फेगोसाइटोसिस में फर्क क्या है? ये सिर्फ लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे. मतलब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा है हमारे बॉडी में घूम रहा है उनको ही खाएगा. मोनोसाइट्स लिविंग या डेड सेल्स को भी खाएंगे. सो न्यूट्रोफिल्स सिर्फ लिविंग सेल्स को खाएंगे. मोनोसाइट्स लिविंग या अगर डेड सेल्स भी घूम रहे तो उसको भी तो निकालने वाला कोई चाहिए. अच्छा, कौन सा एनिमल डेड डिकेइंग एनिमल्स को खाता है? कौन सा एनिमल डेड डिकेइंग एनिमल्स को खाता है? वेरी गुड. ईगल, वल्चर, क्रो. कुछ लोगों ने उसमें वर्ड भी लिखा, उनको हम बोलते हैं स्कैवेंजर्स. So monocytes are also scavengers. Yes, they are scavengers because they kill dead cells also. So neutrophil, monocyte दोनों phagocytes है, दोनों में से बड़ा मोनोसाइट है. तो याद है मैं आपको बता रहा था डायापेडेसिस. तो देखो बेसोफिल का फंक्शन है हिस्टामिन और हिपैरिन निकालना. इओसिनोफिल का फंक्शन है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ब्लड से निकालना. तो इनका काम तो ब्लड में ही है ना. सो मोनोसाइट और न्यूट्रोफिल सेल्स होते हैं जो एक्चुअली सेल से बाहर निकलते हैं, डायापेडेसिस से बाहर निकलते हैं और वो जाके
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कहीं पे भी खा सकते हैं, ठीक है। Now lymphocytes are smallest cells. Details of lymphocytes we will be talking about in the next class. Right now we will just stop here. We'll just complete the percentage. Monocyte is around 5 to 6% of the total WBC, and lymphocyte is 20 to 25% of the total WBC. Okay. All right, so we will stop here. Just a quick recap. We started with WBCs today. WBCs are also called leukocytes. Leukocytes are cells which are produced by the red bone marrow by the process of leukopoiesis. WBCs or leukopoiesis, they don't have a regular shape, hence we say they are amoeboid in shape. Leukocytes or WBCs are not only amoeboid, but they also have a nucleus. These nucleated cells or nucleated WBCs are the cells which are only 5,000 to 10,000 per millimeter cube of blood. Okay. Then when I stain WBCs, I find that there are two types of WBCs, granulocytes as well as agranulocytes. Granulocytes will have granules in their cytoplasm and lobes in their nucleus. Agranulocytes will have no granules in their cytoplasm, means clear cytoplasm, and they will have no lobes in their nucleus also. Okay. There are three types of granulocytes: basophils, eosinophils, and neutrophils. There are two types of agranulocytes, monocytes and lymphocytes. Smallest WBC is lymphocyte, largest WBC is monocyte. In granulocytes, the largest is neutrophils, in the smallest is basophil. Basophils perform a function of reducing histamine, which causes inflammation or redness of an organ, heparin, which is an anticoagulant, and serotonin, which is a vasoconstrictor. Basophils are homologous to mast cells of connective tissue. Then eosinophils actually are detoxifier cells. They help in removing toxins. So what are the toxins? They help in removing antigen antibody complexes. Monocytes and neutrophils are primarily cells of phagocytosis. They perform phagocytosis. Neutrophils will only kill living cells. Monocytes will kill living as well as dead cells. Now, there are so many types of WBCs. हर एक WBC का size, हर एक WBC का nucleus, हर एक WBC का percentage, हर एक WBC का function, सब आपको याद रखना है. But you tend to jumble up everything. Not your mistake also. There are so many things to remember in this bloody world, and so little brain that you have got, that we need to know a brain tag. So the brain tag for remembering so much information, so many cells, will be discussed in the next class. We will meet on Sunday and continue our discussion. We will see some videos. We will see how actually these cells work. Thank you very much, kids. We will, you're not going to have a bio test this week, Kushi. Yeah. Sunday, I'm going to tell you, next Sunday, you're going to have a test. Next Sunday, not this Sunday, next Sunday, you're going to have a test on part 1 and part 2. Thank you, kids. I know that you have some physics class also. Bye-bye, Suramya, Aditi, Josna, Vedika, all of you. Thank you so much, Akhilesh. Bye-bye, Niranjan. Take care. See you tomorrow. See you on Sunday. Bye-bye. Take care. And all the new people, thank you so much. God bless you.